Welcome at Wi-Fi Study channel powered by Unacademy here. Today we are going to start here lecture number 2 and lecture number 1 we have already done. If you not seen that video, you have to go for the first video, then come to the second video. Okay, suppose you have an idea about this type of control system, open loop, closed loop, then you can come to the second video. Okay, and lecture number 1 we have already discussed about the classification of the control system, and next is types of the control system. That is the some most important example for the open loop and closed loop. Third, we have discussed about the test signal, that is unit impulse and unit step function. And next, in lecture 2 I am going to discuss here some basic signal and their Laplace also. Okay, because if you not idea about this Laplace and steady state error, steady state, then you cannot calculate the value of transfer function or steady state value of the output. And first you have to idea about the Laplace here. Then now I am going to discuss here Laplace transform. Before that, about me, this is Atul Prajapati, BTech MTech NIT Allahabad, and I have 7+ year teaching experience in GATE, ESC, ESU, and 6 time GATE qualified with the good rank, and taught 200+ batches all over the India here. Okay, and I have also taken the some special GATE classes in many university. That is what one is Guwahati University, again Guwahati Jorat Engineering College and Technology, and one is the Bir Bahadur Singh Purvanchal University also, and one of them is Dr. B.R. Ambedkar Institute Technology, that is in Andaman Nicobar, Iceland, and 2 year teaching experience in Bir Bahadur Singh Purvanchal University, work as a assistant professor here. Okay, suppose if you want to take the Unacademy subscription, first step is you have to write your Unacademy learning apps in Google Play Store, and suppose first you have to install here, and third process is you have to select either you are preparing for that. Suppose you are preparing for GATE ESC, then you have to select here this GATE ESC, and next process is step is you have to select your plus subscription. There are many free course and special classes there. Okay, step 5 you have to take the GATE subscription here. Okay, and step 6, suppose you are interested only the 12 month, then you can select 12 month. If you are interested in 24 month, then you have to select here 24 month. Okay, and next step is you have, and just most important, just apply the APP 10. You can get minimum 10% discount here. You can get minimum 10%, just apply here APP 10. Okay, for more information you can also connect with me, that is 936. You can connect me and call me. I will give you idea. Means just apply. If any problem related, question related problem, you can free to ask here. Okay, but suppose you can apply the promo code, that is APP10, and apply here, and you can get here minimum 10% discount. And suppose you have any financial problem, then you can take the courses EMI also here. Okay, EMI option is also available here, and you can also use your debit credit card, UPI wallet and net banking, no problem. Okay, and there is very cheap process here, very cheap cost here. Okay, you can take, no problem. Okay, first I'm going to start here some basic type of function. First, I'm going to describe here stable and unstable, because मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, इस सब का आइडिया नहीं है, तो आप जो है इसमें क्या होगा कि आपको कंट्रोल सिस्टम में प्रॉब्लम होगी, 100% प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो स्टडी स्टेट एनालिसिस की बात करते हैं, एरर की बात करते हैं, किसमें अप्लाई करते हैं किसमें नहीं करते हैं, तो ये आपका स्टेबल अनस्टेबल का आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा आपको लाप्लास का बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए, बट आपको सपोज कुछ भी नहीं पढ़ा है लाप्लास में अभी तक, तो मैं इतना आइडिया दे दूंगा कि आपके लाप्लास के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप क्वेश्चन उठा के देख लेना, ए भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या स्टडी है कि नहीं, बट सिंपली इसके बाद जो आप सिंपली जाना क्वेश्चन पे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना, 100% आपको क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब हियर स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम. What is the condition for stable and unstable?
Means suppose if t tending to, you have to keep in mind here, if t is tending to plus minus infinite, and if amplitude is tending to 0, then signal xt is stable. Signal st is, we can say here, stable. Clear? Next, what is the condition for unstable? If t tending to plus minus infinite, if amplitude is goes to infinite, this one is unstable. Clear? Okay, next point is, what is the next condition for stable? P, if any system, we are talking about the system here, if any system which is follow the BIBO criteria, then this one is always be stable. Means when we are providing the bounded input and we are getting the bounded output, this is the condition for stability. This one is the one of the most important chapter for the control system. I will discuss later on in detail here. First, I am going to discuss here, suppose we have a signal, and if it is varies from minus infinite to plus infinite, and if t tending to plus minus infinite and amplitude goes to 0, then this one is the stable. If I want to describe here, suppose this one is the system. Clear? You have to understand here, this one is the system, sorry, signal here. What we can say, if t is tending to here, t is tending to infinite, then amplitude is goes to what? 0. Amplitude is goes to 0 here. And if t tending to minus infinite, this one is also tending towards the 0, then we can directly say this one is stable. Okay, how we can write here this type of graph here? That is what, this one is something like that, alpha mod t here. Clear? And suppose if I write here t square here, this one is graph something like that. Clear? Okay, this one is also stable. Clear? Okay, suppose this one is the graph here. First, if I want to ask you, this one is stable or unstable, then tell me, this one is stable or unstable. What about this portion? When t is tending to minus infinite, amplitude to 0, no problem. But what about this? When t is tending to plus infinite, when t is tending to plus infinite, then what about the amplitude? Amplitude is tending to what? Infinite. If any one condition is not fulfilled, we can directly say this one is unstable. Clear? How we can make it is stable? What is the condition to make it stable? मैंने क्या बोला था? देखो ये क्या है? Left side है. This one is right sided. Suppose if I want to remove the left side, just multiply the ut. If I want to remove the right side, just multiply the u of minus t. Clear? मैं प्रीवियस लेक्चर में सब डिस्कस कर चुका हूं. अगर आपको आइडिया नहीं है तो आपको आइडिया होना चाहिए. आप देख लो उस वीडियो को, क्लियरिटी आ जाएगी. ठीक है, आपका मैक्सिमम 70% तो यही कवर हो जाएगा आपका सिग्नल सिस्टम. तो आपको आइडिया होना चाहिए. अगर आप कंट्रोल सिस्टम पढ़े हो तो इसका आइडिया 100% होना चाहिए आपको. ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, मुझे सपोज इस राइट साइड रीजन की वजह से क्या हो रहा है, किस साइड जा रहा है, अनस्टेबिलिटी की तरह जा रहा है. तो आप सिंपली इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो u ऑफ माइनस टी. जस्ट व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग ऑफ u ऑफ माइनस टी, my dear student, the right side part is eliminated and this one is like that. राइट साइड पार्ट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. तो कहने का मीनिंग क्या है, व्हेन टेन टेंडिंग टू इनफिनिट, एम्पलीट्यूड इज ऑलरेडी 0 हियर, देन दिस वन इज इन, this one is stable. And what about this one is also stable because amplitude is goes to 0. Clear? And graph is, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा e to power 2t something like that. मीन्स अगर आपसे कोई पूछता है e to power 2t is the stable or unstable, you have to say here this one is unstable, this one is unstable. Then how we can make here unstable to stable, how we can make here unstable to stable, just we have to multiply here u of minus t. Clear? Okay, suppose we have a e to power minus 2t, this one is stable or unstable? Many of the students they are saying that sir this one is the stable always. No, this one is unstable, this one is unstable.
And how we can draw the graph of this one? This one is t tend, if I put here t equals to infinite, this one is e to power minus infinite, this is tend toward the 0. And if I put e to power minus infinite, then e to power infinite. This one is tending toward the infinite. This one is graph something like that. What about the right side section? The right side section is stable. What about the left side section? This one is make unstable. Because when t is tending toward the minus infinite, then amplitude is goes toward the infinite, means we can say this one is the unstable. Please tell me what we have to multiply is this signal so that this one is converted into the stable. What we have to do? We have to just multiply here what? We have to just multiply, we have to remove this left side portion, just we have to multiply with the u of t, and when I multiply the e to power minus 2t u of t, this one is what? Stable here. This one is stable. Clear? What about the ramp function rt? When we talking about the ramp function rt, that is equals to t when t is greater than 0, when t is less than 0, its value is 0. Means if I draw the graph of this one is something like that, and means what we can say, when t tending to infinite, amplitude is goes towards the infinite, means ramp is always be unstable. Clear? Okay. Now I am going to discuss one of the most important thing for the control system, and this one is the many most important question that are asked in the interview, many time asked in the interview, because बहुत सारे स्टूडेंट जब इंटरव्यू देके आते हैं तो क्या उनको ये लगता है कि कंट्रोल सिस्टम तो बहुत इजी है, ठीक है, बट वो जब वहां पे जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, वहां पर कंफ्यूज है, तो मैं उसको बताने जा रहा हूँ, आपको वहां पे आइडिया लगाना है, ठीक है। तो उससे पहले मैं कुछ चीजें और बताऊंगा, आपको समझना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले कुछ पॉइंट मैं और डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ओके। लाप्लास ट्रांसफॉर्म मीन्स सपोज इफ आई वांट टू फाइंड आउट द लाप्लास ऑफ xt, आई एम नॉट गोइंग मच इन डिटेल, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, दैट इज व्हाट xt e टू पावर st dt, clear, where s is the complex frequency, that is sigma plus j omega, ठीक है। मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मैं स्टार्टिंग है इसलिए मैं इतना कुछ बता रहा हूँ, आपको ये सब चीजें समझना पड़ेगा। S is the complex frequency, that is sigma plus j omega here. Okay, means we can say here Laplace transform used to convert the time domain to complex frequency domain here. Clear? Means we can say here this one equals to x of s. Time domain is converted to s domain. Clear? Suppose we have a e to power 80 ut. Clear? Please tell me this one is stable or unstable? This one is stable or unstable? Many students say, आपके भी माइंड में यही आ रहा होगा कि सर ये स्टेबल है, बट आपको रिपीट कर दूं, ये इंटरव्यू में पूछा जा चुका है एक बार, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछा था। तो सबसे पहले फोरियर देखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टेबल के लिए भी वैलिड होता है और अनस्टेबल के लिए भी वैलिड होता है, ठीक है, बट हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके लिए वैलिड होता है? केवल स्टेबल के लिए वैलिड होता है। इसके लिए बेटा वैलिड होता है, केवल स्टेबल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो पूछा था कि इफ e टू पावर माइनस 80 ut लाप्लास फोरियर ट्रांसफॉर्म दिस फंक्शन विल एग्जिस्ट और नॉट, फर्स्ट वी हैव टू चेक दिस वन इज स्टेबल और नॉट। मैंने बोला डायरेक्टली देखा पीछले से, मैंने इस पे गया और देखा, अरे वाह ये तो स्टेबल है, ये तो स्टेबल है, क्योंकि इसमें किसका मल्टीप्लाई यूटी का, बट हम आ गए कि स्टेबल है। बट आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ये स्टेबल नहीं है, ऐसे हम बोल नहीं सकते स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे एक पैरामीटर जो वेरी कर रहा है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ए नेगेटिव भी हो सकता है। इफ ए इज नेगेटिव देन e टू पावर व्हाट, suppose if I take a equals to minus 2, then e to power 2t, and this t is valid here 0 to infinite, if I put infinite this one equals to unstable here। then सबसे पहला आप पूछोगे उससे क्वेश्चन कि सर व्हाट अबाउट ए इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटरव्यूअर आपको समझ चुका होगा कि आपको पूरा आइडिया है कि आप क्या चीजें वो जो पूछना चाहता है वो आपको आइडिया हो चुका है, ठीक है। तो आपको ऐसे आंसर देना है, तो समझना पड़ेगा आपको ऐसे। मेरा मीनिंग समझो, यहाँ पे e टू पावर माइनस 80 ut, देन
Fourier transform, this one exists when a is greater than 0, but we are not interested here Fourier transform, because in control system only we are interested only the Laplace transform here. We can discuss later on the Fourier transform, but we are interested only the Laplace transform. Suppose we have a e to power minus at. मैंने यहाँ पे एक टर्म बोला था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट फॉर स्टेबल एंड अनस्टेबल, और फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट फॉर स्टेबल। बट हमसे ये पूछा जाएगा तो बता दो किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, विच टाइप ऑफ फंक्शन वेयर लाप्लास ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट। देन वहां पे आपको बोलना पड़ेगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म उसी का एग्जिस्ट नहीं करेगा जहां पर एक्सेस जो इसका लाप्लास आ रहा है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। क्लियर? ओके। अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहीं से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा, उसको ध्यान रखना। जैसे मैं इसका लाप्लास फाइंड आउट करना चाहूंगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू पावर माइनस एस टी dt. If ut is multiply, then limit is directly changed from 0 to infinite, because minus infinite to 0 ut value is 0, and this one is make all the term is 0 here. Then we can write here 0 to infinite e to power a plus s t dt. मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे। हमें बता दो इसका जो है इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट बता दो फटाफट, फटाफट बताओ यहाँ पर डायरेक्ट क्या आ जाएगा। आपको लिखते जाना है, इससे काम करते हुए चलना है। मैं बता दूं यहाँ पे लाप्लास जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लिखेंगे s plus a, that is what e to power s plus a. If I put infinite, next one is if I put 0, that is equals to what, 1. Then we can write here 1 upon s plus. क्लियर? यही आंसर आएगा? नहीं, अभी नहीं आएगा। सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए। क्या क्या कंडीशन होगी उसको समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी। क्या ये जो कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ था ना, इसकी वैल्यू s प्लस ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे s प्लस ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। सपोज s प्लस ए की वैल्यू निगेटिव हो गई तो इसको निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव कर देगा, सॉरी, e टू पावर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और इसकी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इनफाइनाइट। तो एक्सेस की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो इसका लाप्लास डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो कहने का मीनिंग क्या है यहाँ पे, इफ s plus a is greater than 0, then Laplace transform this function is exist, and Laplace is 1 upon s plus a. And we can also write here s greater than minus a here. We can also write here s greater than minus a, or we can say here sigma is greater than minus a, or we can say real of s is greater than minus a. And what about this one is called as most important term, that is ROC, region of convergence. Means we can say here Laplace transform of any function is exist when its ROC exists, otherwise its Laplace does not exist. Clear? Clear है? Okay. मीन्स हम बोल सकते हैं कि इसका लाप्लास तभी एग्जिस्ट करेगा व्हेन s इज। सर आपने इक्वल टू क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे s इक्वल टू माइनस ए रख दोगे, ये कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट, तो कभी भी इक्वल टू नहीं रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसका ड्रा करना चाहूंगा आरओसी की बात करूंगा तो माइनस ए यहाँ पे होगा। ठीक है, मैंने ऐसे बनाया और इसको यहाँ पे एक सर्कल टाइप का बना दिया, मीन्स इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, इंक्लूड करूंगा तो इनफाइनाइट चला जाएगा। और किस एरिया की बात कर रहा है, ग्रेटर देन, मीन्स ये वाला सारा एरिया। एंड हम किसकी बात करें, ये कौन सा प्लेन है, सिग्मा प्लस ये जे ओमेगा, मीन्स एस प्लेन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, समझ चुके होगे? क्लियर? ओके फाइन। हमें बता दो, जैसे मैं बोला यहाँ पे e टू पावर माइनस ए टी, मैंने a इक्वल टू सपोज 0 ले लिया, मैं कहूंगा कि ut का लाप्लास क्या हो जाएगा, मैंने बोला e टू पावर माइनस ए टी का आया था 1 अपॉन s प्लस ए। If I take a equals to 0, just put the value here 1 upon s here. And what about the ROC, s greater than minus से था, a की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो ये किसका लाप्लास हो जाएगा, ये ut का हो जाएगा 1 upon s here. क्लियर? ओके, आई थिंक सो क्लियर होगा। यहाँ पे जैसे मैं कहूँ यहाँ पे कि u ऑफ माइनस टी का बता दो क्या हो जाएगा लाप्लास, तो सिंपली क्या करो, अप्लाई कर दो। देखो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू पावर माइनस एस टी u ऑफ माइनस टी, मैंने xt के प्लेस पे क्या पुट कर दिया यहाँ पे, u ऑफ माइनस टी dt।
हमें बता दो this function is u of minus t is valid only for minus infinite to 0, then limit is changed from minus infinite to 0 and e to power minus st dt. Clear? Clear or not? Clear. 1 upon minus s. Okay. If I put here 0, this one is what? 1. Again, if I put minus in front, this one is tends to 0. That is equals to what? 1 by s. So we can say minus of 1 upon s. And ROC is what? S less than 0. Clear? इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इस सपोज हमें ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है और if I want to find out the Laplace transform of what? If I want to find out the Laplace transform of f of minus t, then just replace the s with minus s. Clear? Okay. नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे e to power मैं बात करूं यहाँ पे अब e to power मैं बात करूं यहाँ पे e to power minus 80 इसका लाप्लास मुझे बताना है इसका लाप्लास बताना है मुझे तो क्या हो जाएगा लिमिट कहाँ से माइनस इन्फिनिट टू 0 हो जाएगा अगेन माइनस कॉमन हो जाएगा e to power 80 ठीक है एंड e to power minus st dt. क्लियर यहाँ से हो जाएगा माइनस इन्फिनिट टू 0 e s प्लस a b dt. यहाँ से हो जाएगा 1 अपन s प्लस a ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा s प्लस a 0 अगेन e to power s प्लस a दैट इज व्हाट माइनस इन्फिनिट मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे ठीक है देखो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है प्लस हो जाएगा यहाँ पे इन्फिनिट हो जाएगा हमें बता दो यहाँ से तो 1 आ जाएगा नो प्रॉब्लम बट यहाँ से कहाँ चला जाएगा इन्फिनिट इसकी वैल्यू क्या ऐसा कर दे निगेटिव कर दे तो e to power माइनस इन्फिनिट तो 0 हो जाएगा s प्लस a शुड भी क्या होना चाहिए लेस देन 0 s शुड भी लेस देन यहाँ से 0 हो जाएगा तो यहाँ पे लाप्लास क्या आ जाएगा इसका 1 अपॉन s प्लस a हमें बता दो इसका भी लाप्लास यही आया था और मैंने बताया था e to power माइनस 80 ut का भी लाप्लास यही आया था आ रहा था कि नहीं बिल्कुल आ रहा था ना इसका भी लाप्लास सही आ रहा है और इसका भी लाप्लास सही आ रहा है तो मैं कहूंगा कि इसका इनवर्स बताओ तो तुम आंसर कौन सा लिखोगे आप ये लिखोगे या ये लिखोगे तो डिपेंड करेगा कि आरओसी क्या है हमारे ध्यान रखना आई रिपीट आरओसी अगर एस क्या होगा लेस देन माइनस ए होगा तो हमारा आंसर ये होगा और आरओसी इज ग्रेटर देन माइनस ए होगा तो आंसर क्या होगा ये होगा मिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर एग्जाम में इतनी बार पूछा जा चुका है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन इज यूनिक और नॉट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन इज यूनिक और नॉट we have to write here unique not unique it is unique when ROC is given में जब तक ROC given नहीं होगा तब तक लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिक नहीं ठीक है क्लियर ओके एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसका इनवर्स बता दो क्या आएगा आपको आइडिया होना चाहिए सब चीजों का ठीक है क्लियर होना चाहिए सब पॉइंट तो मैं जो लिखने जा रहा हूँ पॉइंट ध्यान से समझना यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं यहाँ पे ये सब पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले जाते हैं इसको आपको आइडिया होना चाहिए first if I write here e to power minus 2t u of t okay next e to power minus 2t u of minus t clear next e to power 2t u of t minus e to power 2t u of minus t मैं डायरेक्ट बताने जा रहा हूँ आप चेक कर लेना इसका लाप्लास आता है 1 अपॉन s प्लस 2 when s is greater than minus 2 इसका लाप्लास आता है क्या 1 अपॉन s प्लस 2 when s is less than minus 2 इसका लाप्लास क्या आता है 1 अपॉन s minus 2 when s is greater than 2 इसका लाप्लास आता है क्या 1 अपॉन s minus 2 when s is less than clear देखो
ये क्लियर है? ई आर ओ सी है सबका, ये क्या है? आर ओ सी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, क्या है? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, मैं थोड़ा सा ड्रॉ भी कर दे रहा हूँ इसको, थोड़ा सा एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट में डिस्कस करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको आपको समझना है थोड़ा सा, इस पॉइंट को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, -2 यहाँ पे कहीं होगा, कह रहा है एस ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या होगा, -2, इस रीजन की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रीजन की बात हो रही है, यहाँ पे इस रीजन की बात, कौन सा है, जे ओमेगा एक्सिस, दिस वन इज सिग्मा, दिस वन इज सिग्मा, जे ओमेगा एंड सिग्मा। क्लियर? दिस -2 जे ओमेगा एंड सिग्मा। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे सुनना पॉइंट में क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले चेक करो ये स्टेबल है क्या अनस्टेबल, स्टेबल है क्या अनस्टेबल। This one is stable because this one is valid for only 0 to infinite. Right sided signal just put the infinite maximum value, ये क्या हो जाएगा 0, तो स्टेबल है। स्टेबल है कि नहीं? बिल्कुल स्टेबल है। What about this? ये कहाँ से कहाँ वैलिड है, माइनस इन्फिनाइट टू 0, इन माइनस इन्फिनाइट पुट करेंगे तो e टू पावर इन्फिनाइट, ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल है। What about this? This one is what? This one is valid for 0 to infinite because ut is function valid for 0 to infinite. Maximum value put करोगे तो infinite means this one is unstable. What about this? This one is valid from minus infinite to 0. Minus infinite to 0 means if I put minus infinite with extreme value, that is goes to 0. This one is stable. Means what I'm trying to say here. सपोज आप ऐसे नहीं चेक कर पा रहे हो कि इसका जो है स्टेबल है कि अनस्टेबल है, मीन्स इनफाइनाइट आप टी के वैल्यू पे नहीं चेक कर पा रहे हो, तो आप सिंपली क्या करो, आरओसी से चेक कर लो। देखो यहाँ पे इफ आरओसी इंक्लूड द जे ओमेगा एक्सिस, ये क्या है, जे ओमेगा एक्सिस, इफ आरओसी इंक्लूड द जे ओमेगा एक्सिस, दिस वन इज स्टेबल, क्या स्टेबल है। व्हाट अबाउट दिस, क्या जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड करा, नहीं करा, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल, वही है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस, ये भी नहीं, तो ये भी क्या हो गया, अनस्टेबल, ये भी है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्लूड कर रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे। कहने का मीनिंग क्या है कि आप टाइम डोमेन में क्या करो, प्लस माइनस इनफाइनाइट पे चेक कर लो, या क्या कर लो, अगर आप लाप्लास डोमेन का आइडिया है तो आप क्या करो, सिंपली उसका आरओसी चेक कर लो, वही क्या हो जाएगा। अगर जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड करा है तो स्टेबल है, जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड नहीं करा है तो क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्लियर? अब मैं यहाँ पे कहूंगा कि आपको आरओसी कैसे डायरेक्ट निकालना है। ठीक है, जो स्टूडेंट पूछते हैं, मुझे सब आइडिया कि आपको क्या डाउट हो सकता है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन कोर्सेज अराउंड जो है 6-7 ईयर से ले रहा हूँ और बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। आपको 1% का भी डाउट नहीं होगा, 1% का भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं होगा किसी कॉन्सेप्ट की वजह से, क्योंकि मैं उस डेप्थ तक जाता हूँ कि उस एनालिसिस तक जाता हूँ कि आपको 1% भी कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो आपको सॉल्व करने। ठीक है, आपको मैक्सिमम जो देखोगे क्वेश्चन तो उसमें देखोगे कि सर ने ये चीजें मेथड बताई हुई है, क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस कर चुका हूँ 30 इयर्स का, उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट कभी वेरिएशन नहीं आता। ठीक है, तो आपका आइडिया होना चाहिए इतना। मैंने क्या बोला कि आरओसी निकाला, आरओसी आप इंटीग्रेशन करके निकालोगे। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्टकट देने जा रहा हूँ, इसको आपको अप्लाई करना है और आज ही जैसे ही आप वीडियो देखते हो आप सिंपली उठा लेना प्रीवियस ईयर पेपर गेट का, लाप्लास के पूरे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, तो आप समझो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट की क्या बात कर रहा हूँ। देखो डायरेक्ट आपको आरओसी कैसे बतानी है, ई टू पावर कभी भी अल्फा टी दिया रहेगा और यहाँ पे यूटी दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले यूटी वाला टर्म देखना है। यूटी वाले टर्म में टी क्या है, टी के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट लिखना है यहाँ पे एस ग्रेटर देन, और यहाँ पे यू ऑफ माइनस टी लिखा हुआ है तो डायरेक्ट लिखेंगे एस लेस देन। ध्यान रखना है पॉइंट आपको बताना। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे यूटी मल्टीप्लाई एस ग्रेटर देन, किससे, टी का जो कोफिशियंट है, टी का कोफिशियंट क्या है, -2। यहाँ पे बोलो माइनस टी है तो मैंने डायरेक्ट लिखा एस लेस देन, किससे, टी का कोफिशियंट यहाँ, यहाँ टी है, यूटी है, डायरेक्ट एस ग्रेटर देन व्हाट,
यहाँ पे u माइनस टी है, s लेस देन, समझ पा रहे हो क्या? आई थिंक सो। मैंने क्या बोला कि लाप्लास उसी का एग्जिस्ट करेगा जिसकी आरओसी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। हमें बता दो, अगर मैं t इक्वल टू यहाँ पे, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे a ले लेता, सिंपली मैं 2 के प्लेस पे क्या ले लेता, ए टी u ऑफ माइनस टी ले लेता, इसका लाप्लास क्या हो जाता, 1 अपॉन एस प्लस ए आता। यहाँ पे a इक्वल टू अगर मैं 0 पुट कर देता तो क्या हो जाता, माइनस ऑफ u ऑफ माइनस टी का लाप्लास क्या आता, 1 अपॉन एस आता, और इसका क्या होता, एस लेस देन 0 होता। ये तो होता, या ऐसे भी कर सकते हैं, u ऑफ माइनस टी इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन, यही होगा। अब आ जाओ, अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है। आपने कंट्रोल सिस्टम इतना तो पढ़ा होगा बीटेक लेवल में, आपने एक चीज पढ़ी होगी वहां पे, इफ एनी पोल्स इज लाई ऑन द right side, this one is unstable. If lie on the left hand side, this one is stable. If lie on the geometric axis, this one is margin stable. ये 100% आपने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट आ रहे हो, ठीक है। अगर नहीं डायरेक्ट आ रहे हो तो आप बस समझ जाओ कि if any poles lie on the this side, this one is what, unstable. लेफ्ट साइड लाई करेगा तो स्टेबल, इस पे लाई करेगा तो margin stable, और रिपीटेड लाई कर जाएगा तो हमें बता दो ये पोल कहाँ पे लाई कर रहा है, ये पोल लाई कर रहा है कहाँ पे, लेफ्ट साइड स्टेबल, ठीक है, करेक्ट है। यहाँ पे देखो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये लेफ्ट साइड लाई कर रहा है, बट यहाँ पे अनस्टेबल क्यों हो गया? कंट्रोल सिस्टम तो ये बोल रहा था कि यहाँ पे स्टेबल है, बट यहाँ पे ये सिग्नल क्यों बोल रहा है इसको अनस्टेबल? सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू का ये, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये राइट साइड लाई कर रहा है, अनस्टेबल सिग्नल भी बोला, ठीक है, करेक्ट है। व्हाट अबाउट दिस, ये लाई कर रहा है हमारा राइट साइड, बट हम सिग्नल बोला है स्टेबल, बट कंट्रोल सिस्टम की थ्योरी क्या बोल रही है, दिस वन इज अनस्टेबल। आपको इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना है बेटा, क्यों ये अनस्टेबल है, क्यों स्टेबल है। मैंने आपको पहले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, मैंने बताया था वहां पे कि हम जो पूरे कंट्रोल सिस्टम की स्टडी करते हैं वो किसकी स्टडी करते हैं, कॉजल सिस्टम की पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल सिस्टम की पढ़ते हैं। तो कॉजल सिस्टम की कंडीशन होती है कि हमेशा t ग्रेटर देन 0 के लिए वैलिड होता है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें ये ut वाला टर्म जो है केवल कंसीडर किया जाएगा, u ऑफ माइनस टी के लिए हमारा कंट्रोल सिस्टम वैलिड नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो करेक्ट आ रहा है, इसमें भी हमारा क्या हो रहा था, करेक्ट आ रहा था, इसमें इशू आ गया था ना। तो आप बस समझना कि हमारा जो भी कंट्रोल सिस्टम की हिस्ट्री करते हैं उसमें क्या मल्टीप्लाई टी का टर्म होता है, मींस वी आर स्टडी ओनली फॉर 0 टू ऑल द प्रैक्टिकल सिस्टम विच स्टार्ट फ्रॉम 0 टू, नेक्स्ट पॉइंट I want to discuss here, that is what, e to power minus 2t u of minus t. Next, e to power minus 3t u of minus t. इसका लाप्लास क्या होगा, डायरेक्ट कहोगे, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई नहीं है तो लिख दोगे 1 अपॉन एस प्लस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एस प्लस 3, और उसी की बात करोगे तो एस लेस देन माइनस 2, यहाँ पे क्या होगा एस लेस देन माइनस 3। अगर कॉमन और ओसी की बात करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा माइनस 3 एंड माइनस 2, ये भी लेस देन करा है, ये भी लेस देन करा है, तो कॉमन और ओसी की बात करेंगे तो एस क्या होगा लेस देन माइनस 3। इसका मीन्स इसका लाप्लास ये होगा, और आर सी क्या होगा एस लेस देन माइनस 3। ये क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन u ऑफ t एंड e टू पावर माइनस 3t u ऑफ माइनस t, ठीक है। इसका लाप्लास पूछा जाएगा और 4 ऑप्शन आएगा, तो आप इतनी स्पीड में रहते हो वहां पे लिखोगे 1 अपॉन s प्लस 2, वाओ इतना आसान क्वेश्चन, माइनस 1 अपॉन s प्लस 3, ठीक है। और एक ऑप्शन मैच हो जाएगा, 100% आप मिस्टेक कर चुके हो, वहां पे ध्यान रखना। सबसे पहले चेक करो व्हाट अबाउट द ROC, what about the ROC, what about this s is greater than minus 2, what about s is less than minus 3, चेक करते हैं। माइनस 3 यहाँ पे, माइनस 2 यहाँ पे, s ग्रेटर देन माइनस 2, s लेस देन माइनस 3, कोई भी कॉमन ROC नहीं हो रहा है तो इसका लाप्लास डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे मैं कहूँ सिग्नम टी का, सिग्नम टी इक्वल टू यू टी u of minus t, what about this s is greater than 0, s is less than 0, there is no any common ROC, Laplace transform does not exist here. क्लियर, ये सब बात अब आप समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखो एक इनिशियल वैल्यू फाइनल, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम,
ठीक है, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम के क्या, सपोज एक्स टी इट्स लाप्लास इज एक्सेस, and if I want to find out the value of steady state value or final value theorem, then we have to apply the final value theorem, that is x of infinite, that is limit s tending to 0 s axis। ठीक है, और ध्यान रखना फाइनल वैल्यू थ्योरम इज अप्लीकेबल फॉर स्टेबल, या ऐसे ना समझो, ऐसे समझ सकते हो कि ये फाइनल वैल्यू थ्योरम है। देखो इस क्वेश्चन में कंट्रोल में बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं कि स्टेडी स्टेट वैल्यू बताइए, ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा और इनपुट दिया रहेगा और पूछेगा स्टेडी स्टेट वैल्यू, तो आपका लाप्लास का सबसे पहले आइडिया होना चाहिए, उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे स्टेडी स्टेट वैल्यू। और जब भी स्टेडी स्टेट वैल्यू की बात होगी तो हमेशा आपको निकालना है क्या, वहां पे आपको निकालना है फाइनल वैल्यू थ्योरम। एंड हाउ वी कैन फाइंड द फाइनल वैल्यू थ्योरम, just apply the limit x t tending to infinite and limit s tending to 0 as axis, and what is the condition for apply the final value theorem। यहाँ पे ध्यान रखना इसमें कई सारे थ्योरी, दो तीन थ्योरी एक आती है, मीन्स कई सारे स्टेप होते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 एंड स्टेप 3 बोला जाएगा इसमें कई सारे, बट मैं इस सबका स्टेप का एक मिक्स करने जा रहा हूँ। आपको बुक में देखोगे कई सारे लिखे रहेंगे कई चीजें, बट मैं उसका एक कॉन्सेप्ट मिक्स करने जा रहा हूँ। इसमें देखो स्टेप 1 में कहता है कि कोई भी पोल राइट साइड नहीं लाई करना चाहिए इसका, एस एक्सेस का, ठीक है, कोई इमेजिनरी पे नहीं लाई करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आप सिंपली समझो रिपीटेड पोल नहीं लाई करना चाहिए, मैं उसका एक लाइन में बस बताने जा रहा हूँ, उसको आपको ध्यान रखना है। इसका ध्यान रखो कि द रियल पार्ट ऑफ S axis, that is what sigma की बात हो रही है। The real part of S axis is negative. I write here strictly negative. मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया, ध्यान रखना। If real part of S axis is negative, then we can apply the final value theorem. Otherwise, we cannot apply the final value theorem. I repeat, if the real part of S axis is negative, then we can apply the final value theorem. Otherwise, we cannot apply the final value theorem। ये कई सारे कॉन्सेप्ट का मिक्स करके, बस आपको इतना पॉइंट आप ध्यान रखना, आपका सारा क्वेश्चन कभी मिस्टेक नहीं हो सकता, ठीक है, इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, यहाँ पे जैसे मैं पूछ दूं एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एस एस माइनस 1, वी कैन अप्लाई द फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टडी स्टेट, मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इनफाइनाइट। आप क्या करोगे, इनवर्स निकालोगे, फिर टी इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करोगे, या डायरेक्ट अप्लाई कर दो फाइनल वैल्यू थ्योरम। क्या बोलेगा फाइनल वैल्यू थ्योरम, सपोज मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं इनफाइनाइट पे वैल्यू, तो आप सिंपली क्या करो, उसका लाप्लास का आइडिया, तो लिमिट s tending to 0 s axis, that is 1 upon s s minus 1। before that we have to check here if sigma is negative or positive। इसके सिग्मा की बात हो रही है s axis, इसका देखो ये कैंसिल हो चुका, सिग्मा क्या 1 upon s minus 1 आ चुका, तो s इक्वल टू क्या आ चुका 1। हमें बता दो बेटा सिग्मा यहाँ पे नेगेटिव है क्या, सिग्मा यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू क्या है 1 है, और सिग्मा पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट वी कैन नॉट अप्लाई द फाइनल वैल्यू, ठीक है, डायरेक्ट बोल देना कि फाइनल वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल हियर। सपोज इफ आई राइट हियर 1 upon s s plus 1, व्हाट वी हैव टू s एक्सेस हियर, यहाँ से आ जाएगा 1 upon s plus 1 and s equals to minus 1 and sigma we can say negative, directly apply the final value theorem। and what is the final value, that is limit s tending to 0, s cancel, that is 1 upon s plus 1, just put the value, that is equals to, this is the steady state value, this is the steady state value। ये आपको ऐसा आइडिया होना चाहिए, सब पॉइंट क्लियर, ये सब आइडिया होना चाहिए कंट्रोल सिस्टम में आपको स्टडी करने से पहले फाइनल वैल्यू थ्योरम का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ पॉइंट की, तो ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो आपका अब कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, पहले लेक्चर में था बट यहाँ पे कुछ चीजें जानना जरूरी था, ठीक है। तो अब हम आ सकते हैं, आप थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम चैनल, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो मुझसे पढ़ना या किसी और एजुकेटर से जो टॉप एजुकेटर हैं, यहाँ पे आप ऐसा नहीं कि इस एप्स को अप्लाई करके मुझसे ही पढ़ोगे, आप कोई भी सपोज मुझसे नहीं समझ में आता किसी और टीचर को रिफर कर लो, ठीक है। यहाँ पे कई सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर अवेलेबल हैं, आप उसमें से किसी का भी सब्सक्रिप्शन लेके, ठीक है, आप उससे स्टडी कर सकते हो, ठीक है। आपको कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और कहीं से भी स्टडी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है।
तो आप कनेक्टेड रहो और ये कोर्स ये कोड अप्लाई कर सकते हो APP10. You can get your minimum 10% discount. And if you have any doubt, then you can free to ask here. Okay. Thank you so much.